کاماریڈی میونسپل چیئرمین اور کونسلرز نے جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر سے ملاقات کی، جس میں کاماریڈی میونسپلٹی کی ترقی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل نمائندوں نے شبیر علی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کاماریڈی میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے خطیر فنڈز منظور کیے اور ہر مرحلے پر تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے شہر میں بنیادی ڈھانچے اور شہری سہولیات کی بہتری کے لیے ان کی مسلسل کاوشوں کو سراہا۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر، فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں، فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس، فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سابق وزیر ہریش راؤ کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں پرگی کے دورے پر جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب وہ انڈسٹریل پارک منصوبے سے متاثرہ کسانوں سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اطلاعات کے مطابق BRS کے قائدین پر پابندیاں عائد کر دی گئیں تاکہ وہ متاثرہ کسانوں سے ملاقات نہ کر سکیں۔ پولیس کی بھاری نفری ہریش راؤ کی رہائش گاہ کے باہر تعینات کر دی گئی اور علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ اسی دوران سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی کو بھی رنگا ریڈی اور وقارآباد اضلاع کے کئی دیگر رہنماؤں کے ساتھ گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ పరిగి నియోజకవర్గంలో దళిత గిరిజన బలహీన వర్గాల భూములను ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక పార్కుల పేరు మీద లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే ఆ ప్రజల పక్షాన పోరాడడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఒక నిరసన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। మరి ఎందుకు ప్రభుత్వం అంత భయపడతా ఉంది? మీరే చెప్పారు, మేమొస్తే ప్రజాస్వామ్యం అనే 7వ గ్యారంటీ ప్రజలకు ఇస్తున్నాం, ప్రజలకు ప్రశ్నించే హక్కు కల్పిస్తాం, ప్రజలు عالمی یوم صحت ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عظیم مفت میگا ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام منورما سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے زیر اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز روایتی طور پر چراغ روشن کر کے کیا گیا۔ اپنے خطاب میں پولیس کمشنر نے کہا کہ پولیس اہلکار دن رات خدمات انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، لہٰذا سب کو ڈاکٹروں کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ جگتیال شہر کے میونسپل دفتر میں اینٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے اچانک چھاپہ مار کارروائی انجام دی، جس سے دفتر میں ہلچل مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران حکام نے دفتر کے عملے کے موبائل فون ضبط کر لیے تاکہ شواہد اکٹھا کیے جا سکیں۔ اطلاعات ہیں کہ مختلف محکموں میں بدعنوانی کے الزامات کے پیش نظر یہ چھاپے مارے گئے، جبکہ ٹاؤن پلاننگ شعبے پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کیونکہ اس شعبے کے خلاف متعدد شکایت موصول ہوئی۔ ACB حکام تمام ریکارڈز کی جانچ کر رہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحقیقات کے بعد مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے شہر مسعود چوک میں واقع بالک مندر اسکول میں قائم 10ویں جماعت کے امتحانی سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور وہاں جاری امتحانات کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے امتحانات کے انعقاد کے طریقہ کار کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہوئے سینٹر میں فراہم کی گئی سہولیات اور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ طلبہ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اور تمام امتحانات مقررہ قواعد و ضابطے کے مطابق شفاف اور منظم انداز میں منعقد کیے جائیں۔ اس معائنے کے دوران تحصیلدار سرینواس، فلائنگ اسکواڈ کے عہدیداران ادے راؤ اور پرینیواس، چیف سپرنٹینڈنٹ سارا خاتون، ریونیو انسپکٹر یاجویندر سمیت دیگر متعلقہ عہدیدار موجود تھے۔ ورنگل کے MGM دواخانے کا
पश्चिम हलके के रुकन असम्बली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में जारी खिदमत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जनरल OPD शोबे में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया और वहां मौजूद डॉक्टरों से बराह रास्त बातचीत करते हुए इलाज व मुआलजे की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। बादशाह MLA ने सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में अस्पताल में हालिया पेशरफ्त और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने खास तौर पर मेडिसिन शोबे में पाई जाने वाली सस्ती और दरकार फंड्स के हवाले से फौरी मनसूबा बंदी और मनसूबा पेश करने की हिदायत दी। बांग्लादेश में खसरा का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है, जहां अब तक कम से कम 118 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। मुल्क के महकमे सेहत के डायरेक्टोरियल जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक हालिया दिनों में अमवात में तेजी आई है और सिर्फ 24 घंटों में 5 अफराद दम तोड़ गए हैं। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक खसरा के मुश्तबा मरीजों की तादाद 2006 तक पहुंच चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सूरत हाल संगीन है, जहां मुत्तअदी अलामात के शिकार मजीद 2 बच्चों की मौत के बाद वहां अमवात की मजमूई तादाद 42 हो गई। अस्पताल के तर्जुमान शंकर कुमार बिस्वास के मुताबिक ये दोनों अमवात भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई, जिससे जाहिर होता है कि बीमारी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही। जिले कांग्रेस कमेटी DCC की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हलफबरदारी की मीटिंग नागर कर्नूल में कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एहतमाम संगठन सरीजन अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर और MLA वंशी कृष्णा ने की और इसमें TPCC के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बादशाह TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने DCC एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को हलफ दिलाया। MLA कासिर रेड्डी, नारायण रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, MP मल्लू रवि, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत, CWC के रुकन चिल्ला वंशी चंद्र रेड्डी और दीगर अहम कायदीन व कारकुनों ने मीटिंग में शिरकत की। केरला में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन सियासी सरगर्मियां उरूज पर, जहां कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी ने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत और मरकजी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में उन्होंने अवामी मसाइल, खासतौर पर रोजगार, किसानों की मुश्किलात, बुनियादी सहूलियात की कमी और इंसानी व जंगली हयात के तसादुम जैसे मामलात को नुमाया तौर पर उठाया। प्रियंका गांधी ने अपने खिताब का आगाज आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए किया और कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी उनके लिए बाइस एजाज। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान बतौर अवामी नुमाइंदा उन्होंने मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात करके उनके मसाइल को समझने की कोशिश की, मगर उन मसाइल के हल में रियासती और मरकजी हुकूमतों के दरमियान ताउन की कमी एक बड़ी रुकावट रही। कर्नाटक में LPG और ईंधन बहरान को लेकर सियासत तेज हो गई है। वज़ीर आला सिद्धरामैया, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार और कांग्रेस के रहनुमा व सीनियर लीडरान ने मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। एक मुश्तरका बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत में संगीन LPG और ईंधन का बहरान पैदा हो गया है, जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने दावा किया है कि रियासत के 5 लाख से ज्यादा ऑटो चलाने वालों पर बराह रास्त इसका असर पड़ा है। उनका कहना है कि ऑटो गैस की कीमत 58 से 61 रुपए फी लीटर थी, जो अब कुछ ही हफ्तों में बढ़कर 105 से 120 रुपए फी लीटर हो गई है, यानी तकरीबन 106% का इजाफा हुआ है। प्राइवेट पेट्रोल पंपों पर यह कीमत 125 से 135 रुपए फी लीटर तक पहुंचने की भी बात कही गई। आसाम में असम्बली इंतखाब की तशहीर का आखिरी दिन रहा, लेकिन आसाम की सियासत में जारी हलचल का असर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने 2 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी बीवी रिंकी भुइया शर्मा पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। रिंकी भुइया ने इन इल्जामात को झूठा करार देते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद आसाम पुलिस दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की रिहाइश पर छापा मार दिया। बताया जा रहा है कि आसाम पुलिस को पवन खेड़ा तो नहीं मिले, लेकिन कुछ दस्तावेजात घर से बरामद हुए। पवन खेड़ा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने अपना सख्त रद्दमल जाहिर किया। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी फैमिली पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। पवन खेड़ा जी ने सबूतों के साथ अपनी बात रखी है, लेकिन हेमंत उन इल्जामात पर जवाब देने की जगह गंदी गंदी गालियां दे रहे। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि उनकी यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस दिल्ली आकर किसे डराना धमकाना चाहती है।
को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए हैं, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत तो विश्व सर हिंदुस्तान के सबसे हाईटेक और प्रीमियम ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक बार फिर खराब खाने की वजह से सुर्खियों में। अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन में मुसाफिरों को पेश किए गए खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत सामने आई। इस वाकये ने न सिर्फ रेलवे की साख पर सवाल खड़े किए बल्कि मुसाफिरों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी जाहिर कर दिया। ये मामला तब रोशनी में आया जब आदित्य डोडावानिया नामी एक मुसाफिर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खाने में निकले कीड़े की तस्वीर शेयर की। आदित्य ने बताया कि सफर के दौरान उन्हें जो खाना दिया गया इसमें कीड़ा रेंग रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी कोच में कम से कम 2 दीगर मुसाफिरों के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया। इसके बाद कोच में हंगामा शुरू हो गया और कई मुसाफिरों ने खौफ के सबब खाना खाने से ही मना कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।